تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سے کلاسز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں درخشاں بک کے 2025 میں جو بچے ایگزام دینے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 7 کا، جس کا نام ہے ریا، جس کے مصنف ہے یعنی لیکھک، جس کو رائٹر کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان بہت ہی معتبر شخصیت ہے، ان کے بارے میں ہم پہلے جانیں گے، اس کے بعد سبق کی اور بڑھیں گے۔ تو آئیے ہم سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو بچے 2025 میں ایگزام دیں گے ان کو بھی فائدہ ہو، اور جو بھی ہم پڑھائی کرتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی، وہ ہمیشہ کام آتی ہے۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں جان دیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے چیپٹر نمبر 7 اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریا۔ ریا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ریا کا جو لغوی معنی ہے وہ ریاکاری ہوتا ہے۔ انسان ایک مکار ہوتا ہے، ایک ریاکار ہوتا ہے۔ مکار وہ ہوتا ہے جو بدمعاشی کرتا ہے، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن جس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، جو ریاکار کرنے لگتا ہے، جو اپنے دل میں بغض رکھنے لگتا ہے، اس کے اندر ریاکاری چھا جاتی ہے اور پھر وہ ایک انسان کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر دیکھیے ان کے لکھنے والے کون ہیں؟ سر سید احمد خان۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سر سید احمد خان۔ ان کے بارے میں کچھ تفصیلی معلومات میں آپ کو دوں گا۔ یہاں پر پہلے ان کے نام یہ جو سر لکھا ہوا ہے یہ نہیں لگتا تھا، یہ والا یہ سر نہیں لگتا تھا۔ یہ سر کب لگا، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہاں پر میں نے کچھ لکھا ہے، یہاں پر نوٹ آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے، یعنی جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، جو میرے چینل پہ ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کچھ میرے پاس ہے، وہ ایسا کیا ہے؟ میں نے یہاں پر لکھا اچھا نمبر لانے کا دھانسو طریقہ۔ یہاں پہ لکھا ہے میں نے اچھا نمبر لانے کا دھانسو طریقہ، یعنی آپ اچھا نمبر بورڈ ایگزام میں کیسے لا سکتے ہیں، کون سے ایسے کام ہے جو آپ کو کرنا ہے جس کے وجہ سے ایگزامنر آپ کو 100% نمبر دے گا ہی دے گا۔ تو آئیے ان کے بارے میں ہم ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ تو میں کہہ دوں آپ کو کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، ورنہ بہت کچھ مس کر سکتے ہیں آپ۔ سب سے پہلا ہم مصنف کے بارے میں جانتے ہیں۔ مصنف کس کو بولا جاتا ہے؟ مصنف کہتے ہیں رائٹر کو، یعنی لیکھک کو، جو لکھتے ہیں، جو چیپٹر کو لکھتا ہے اسی کو مصنف اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو مصنف کون ہے؟ سر سید احمد خان ان کے مصنف ہے۔ کس کے مصنف ہے؟ ریا کے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے ریا، ان کے مصنف ہے، یعنی ریا چیپٹر لکھنے والے ہیں سر سید احمد خان۔ آگے لکھا ہوا ہے یہاں پر تعلیم و تربیت والدہ عزیز النساء بیگم کے سائے میں ہوئی، یعنی اب یہاں پر ایک بات پتہ چل گئی کہ سر سید احمد خان کے والدہ کا نام کیا ہے؟ تو والدہ کا نام ہے عزیز النساء بیگم۔ یہ آپ کو ایگزام میں آ سکتا ہے آبجیکٹو میں۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا؟ تعلیم و تربیت والدہ عزیز النساء بیگم کے زیر سایہ ہوئی۔ زیر سایہ کا معنی ہوتا ہے ان کی نگرانی میں، یعنی ان کی موجودگی میں سر سید احمد خان کی جو شروعاتی تعلیم ہوتی ہے وہ ہوئی۔ آگے لکھا ہوا ہے 1862 عیسوی میں، ہجری میں نہیں عیسوی میں، 1862 عیسوی میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی۔ سوسائٹی کس کو بولتے ہیں وہ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سوسائٹی کیا ہوتا ہے۔ کہ 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تہذیب الاخلاق، تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ کھولا۔ تہذیب الاخلاق نام سے کیا ہوا؟ ایک رسالہ کھولا، جس کے اندر سماجی، تہذیبی اور ادبی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ دیکھیے مضمون کی جمع مضامین ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا دفتر کھولا جہاں پر اردو کی تدریس، یہاں پر کیا بولتے ہیں سماجی تدریس، تہذیبی تدریس، ان کے کیا ہوتے ہیں مضمون شائع ہوتے تھے۔ مضمون ایک ہوتا ہے اور اس کی جمع مضامین ہوتا ہے، یعنی جب بہت سارے مضمون پر گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتا ہے، تو اس کو مضامین کہتے ہیں۔ یہ کہاں پر ہوتا تھا؟ تو تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ کھولا گیا تھا، ایک آفس کھولا گیا تھا۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی جاتی تھی اور لوگوں کو فراہم کرائی جاتی تھی۔ آگے یہاں پر لکھا ہے، یہاں پر تو یہ والا ہو گیا۔ اب یہاں پر لکھا 1878 میں سر کا خطاب ملا۔ خطاب کس کو بولتے ہیں؟ یہ اہم ٹاپک ہے۔ خطاب بولتے ہیں ایوارڈ کو۔ جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ جیسے میں ہوں، صرف میرا نام تھا سفیان، لیکن جب سے میں حافظ بنا ہوں تو مجھے حافظ کا ایک لقب مل گیا، ایک ایوارڈ مل گیا، ایک خطاب مل گیا۔ تو ایوارڈ کو ہی اردو میں خطاب بولا جاتا ہے۔ تو سر سید احمد خان پہلے سید احمد خان تھے، سر نہیں تھا، لیکن ان کے نام کے سب سے شروع میں سر جب جوڑنے لگا، کب؟ 1878 میں سر کا خطاب ملا۔ اب تصانیف دیکھ لیجئے۔ تصانیف ہوتا ہے تصنیف، یعنی لکھنے کو، لیکن لکھنے کی جو جمع ہے
जो तसनीफ की जमा है वो तसानीफ हो जाता है, यानी बहुत सारे लिखने वाले। लेकिन होता है ना कि अगर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं तो उनमें कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो इनकी दो किताबें ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती थी, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी। उनके नाम क्या है? सबसे पहले आसारुस सनादीद। क्या नाम है? पहले वाली किताब का नाम आसारुस सनादीद, दूसरी किताब का नाम है असबाबे बगावत हिंद। ये किनकी किताब है, किनकी तसनीफ है? तो सर सैयद अहमद खान की तसनीफ है, यानी सर सैयद अहमद खान ने इनको बनाया है, यानी इनको लिखा है। आगे देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, यानी जब सर सैयद अहमद खान लोगों को उर्दू की तरफ बुला रहे थे, उर्दू का एक मिशन चला रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या खोला? एक अलीगढ़ में एक स्कूल खोला। अलीगढ़ में जो स्कूल खोला गया था उसका नाम पहले कुछ और था, उसके बाद उसको बाद में तब्दील कर दिया गया। नाम को क्या किया? तब्दील कर दिया गया था। इसी तरीके से सबसे पहले उसने क्या किया? अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या नाम था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, पहले उनका नाम था, यहां पर लिखा हुआ है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर क्या हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से उभरा, यानी नाम पहले कुछ और था, उसके बाद क्या हुआ कि वो नाम बदल कर उसको तब्दील कर दिया गया। उसके बाद वो क्या हुआ? पूरी दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से उभर कर आया, सामने आया। उसके बाद क्या हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम उसका पड़ गया, यहां पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ उनका इंतकाल। इनका इंतकाल कब हुआ और कहां हुआ? तो इनका इंतकाल हुआ 1898 ईस्वी में हुआ, यानी कहां हुआ? तो अलीगढ़ में ही हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही हुआ। और दफन भी कहां हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही इनका दफन हुआ। अब एक बात यहां पर समझ में आई कि पैदा दिल्ली में हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने खोला, उसके बाद ये इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ, और इनका जो कब्र है, इनकी जो मजार है वो कहां है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही है, यहां पर लिख दिया मैंने। तो ये जो मजबूत और पॉपुलर बात थी जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, वो यहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब हम कुछ और स्पेशल जानने वाले हैं कि रियाकारी में आखिर ऐसा किया है जिसको सर सैयद अहमद खान यानी इतने बड़े मुअज़्ज़िज़ आदमी ने लिखा है, और ये हमें क्या बताना चाहता है, हमें किन बातों को फॉलो करना चाहिए, इंसानों से कैसे बचकर रहना चाहिए, ये पूरी बात हम तफसील से जानेंगे। क्योंकि रिया जो ऊपर हेडलाइन दिया गया है इसका माना ही होता है रियाकारी, यानी इंसान एक दूसरे से कैसे रियाकारी करता है। तो आइए हम थोड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो आइए फिर से हम अपने बोर्ड पर चलते हैं और सर सैयद अहमद खान ने कौन कौन सी बातों को वजाहत के साथ बताया था वो हम जान लेते हैं। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने जो बताया है, जो हमें बताया है किताब में लिखकर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम उनको जान लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही खुशी का बाइस होगा। क्योंकि बच्चे अक्सर ये मुगालते में रहते हैं, ये कश्मकश में रहते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो जाता है। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भला करना चाहते हैं लेकिन उधर से उनको उल्टा होता है, यानी उनके साथ क्या हो जाता है? बदमाशी करने लगता है सामने वाला। तो आइए हम बोर्ड पर चलते हैं। यहां पर हमने लिखा था कि ज़ेरे निसाब मजमून में सर सैयद अहमद खान ने रियाकारी के सही मफहूम की वजाहत की है। सही मफहूम की वजाहत का माना होता है कि रिया जो है इसका सही से मतलब क्या किया है, डिटेल्स के साथ सर सैयद अहमद खान ने इस चैप्टर रिया में बता दिया है कि इंसान कैसे कैसे आपसे रियाकारी कर सकता है। जैसा कि एक मौलाना को देखिए, क्या है कि वो ऊपर से बहुत ही अच्छा है, यानी वो बहुत ही उम्दा लिबास पहने हुआ है, वो अपने आप को मुत्तकी परहेजगार दिखाना चाहता है, लेकिन उनके अंदर क्या है वो अल्लाह जानता है। वो अंदर से खोखला होता है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे ऐसे मौलाना मिल जाएंगे जो दुनिया में नहूसतें फैलाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मौलानाओं से आप दूर रहें। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि रियाकारी जो होता है वो दिल के बुग़्ज़ को कहा जाता है, किसी से जलने को कहा जाता है। तो इसलिए सर सैयद अहमद खान ने यह भी बताया है, यह भी समझाया हमें कि जब भी हम किसी से मुखातिब हों, यानी किसी के आमने सामने हो, किसी से लेन देन कर रहे हो, किसी से तिजारत की बातें कर रहे हो, यानी किसी को अपनी प्राइवेट बातें भी शेयर करें, तो वहां पर एहतियात बरतने की जरूरत है। क्या पता कि सामने वाला आदमी आपसे बुग़्ज़ करता हो, आपकी तमाम प्राइवेट बातों को, तमाम अच्छी बातों को लोगों तक फैला दे और आपकी बेइज्जती हो जाए, आपके साथ रियाकारी कर दे। तो इसलिए सर सैयद अहमद खान ने यह बताया है कि दुश्मन जो होता है वो कम खतरनाक होता है दोस्त के मुवाफिक। यानी अगर कोई हमारा दोस्त है तो वो क्या करता है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको छुपा लेता है। इसके भी रीजन है। अगर वो हमारे
जो बुराइयां हैं उसको लोगों को दिखा देगा, ये वो हमको बोल देगा, तो वो ये सोचता है कि अगर हमने इनकी बुराइयों को उनको बता दिया तो कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए, कहीं वो परेशान ना हो जाए, वो ये ना सोचने लगे कि छोटी सी बात थी उसको इतना फैला दिया, यानी बहुत सारी बात। लेकिन जो हमारे दुश्मन होते हैं वो हमारे लिए कम घातक होते हैं, वो इसलिए कि अगर हमारे अंदर बुराई होती है तो वो खखोड़ कर निकाल लेता है और वो हमारे सामने पेश कर देता है, वो ये पूरे मोहल्ले में बता देता है कि फलान के आदमी के पास ये है, उसके अंदर ये कमी है, वो ये काम करता है, वो फलाना काम करता है, यानी बहुत सारी बातें जो आपके अंदर कमियां है वो खखोड़ खखोड़ कर निकालेगा और आपको बताएगा। इससे फायदा आपका है, नुकसान कोई नहीं है। और अगर आप इससे कैसे बचें, तो यहां पर यह भी बताया गया है कि अगर आपके अंदर वो बुराइयां मौजूद है तो आपको क्या करना है, उन बुराइयों को सुधारने की कोशिश करनी है। और अगर वो बुराइयां आप नहीं है, आपके अंदर वो नहीं पाई जाती है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हाँ मेरे अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं है। अब क्या होगा कि उनके अमाल उनके साथ। तो यहां पर सर सैयद अहमद खान ने क्या किया है कि रिया जो है इसका मतलब सही से डिटेल्स के साथ हमें बताया है, और यह भी बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में कुछ और होता है और जाहिर कुछ और करते हैं, यानी ऐसा लगता है कि अंदर कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया ही ना हो, यानी इंसान क्या करता है, लोगों को धोखे में डाल देता है और उनको ये तक नहीं मालूम होता कि हमने कोई काम गलत कर दिया है। उनके साथ ऐसी ऐसी रियाकारियां हो जाती है जो लोग को तसव्वुर में भी नहीं आती, यानी वो सोच भी नहीं सकते। आगे देखिए, कह रहा है इस नफ्सियाती कशाकश में इंसान धोखा खा जाता है और उसे ये तक मालूम नहीं रहता कि वो जो काम कर रहा है वो दुरुस्त भी है या नहीं। यानी इंसान ऐसे ऐसे मुगालते का शिकार हो जाता है, ऐसी ऐसी गलतियों का शिकार हो जाता है कि जब वो किसी से मुलाकात करता है, जब वो किसी से मिलता है, जब किसी से गुफ्तगू करता है, जब किसी से मुखातिब होता है, तो वो इतना रियाकारी में मुब्तला होता है कि वो ये तक नहीं जानता, वो ये फैसला भी नहीं कर पाता कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए दुरुस्त है या नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्हें ये तक मालूम नहीं रहता कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अब कह रहा है इसी बात की तरफ सर सैयद अहमद खान ने ज्यादा तवज्जो फरमाई है, यानी किसके ऊपर, कि रियाकारी के ऊपर, कि लोग जो आपसे रियाकारी करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, आपको बचना कैसे है उनसे, आप इनसे निकल कैसे सकते हैं, इसी की तरफ ज्यादा तवज्जो फरमाई है। कि आप चाहते हैं, ये कह रहा है कि आप चाहे कितने भी अच्छे दोस्त से मुखातिब हों, यानी आप चाहे कितने भी क्लोज फ्रेंड से मुखातिब हो, उनसे बातचीत करें, उनको अपनी प्राइवेट बातें शेयर करते हो, लेकिन यहां पर सर सैयद अहमद खान ने कहा है कि आपको हमेशा अकल से काम लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमेशा आपको अकल से काम लेना चाहिए, हमेशा किसी पर आपको बेतहाशा भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कोई भी हत्ता के कोई भी ऐसी बातें हो जो आप दूसरों को बताते हो। तो यहां पर क्या कह दिया है कि अकल से काम लेना चाहिए। आपके दोस्त दुश्मन के मुकाबिल, यहां पर साफ साफ लफ्जों में बता दिया गया कि आपके दोस्त दुश्मन के मुकाबिल ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। क्या कह रहा है? आपके दोस्त दुश्मन के मुकाबिल ज्यादा क्या हो रहा, खतरनाक साबित होते हैं। तो खास तौर पर अपने दोस्त से मुखातिब होते वक्त ख्याल रखें। क्या कह रहा है कि जब भी आप अपने दोस्त से ज्यादा मुखातिब हो, उनके साथ ज्यादा मिलजुल हो आपका, तो हमेशा इन बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो जिससे बात कर रहे हैं सामने वाला से, वो भी राज छुपाने वाला है या नहीं है। हमेशा किसी पर भी बेतहाशा भरोसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज चाहे कोई भी हो, अपने घर वालों के अलावा। तो यहां पर सर सैयद अहमद खान ने हमें बता दिया है कि अगर हम किसी से काम के बारे में बात करें तो भी हमें मुहतात रहना चाहिए, चाहे हम किसी से अपने करीबी बात करें तो भी हमें मुहतात रहना चाहिए। अदरवाइज चाहे हमारे दोस्त ही क्यों ना हो, हमारे अजीज ही क्यों ना हो, वो क्या करते हैं कि वो हमारे ऐबों को छुपा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे अंदर भी रियाकारी आ जाती है। अगर कोई लोग गलत काम कर रहा है, हम उनको देखते हैं, कोई उनको बताने वाला नहीं होता, तो उनको देखकर हमारे अंदर शौक पैदा हो जाता है कि हाँ हम भी वो काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा नाम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सरासर गलत है, ये जुर्म है। सर सैयद अहमद खान ने यहां पर साफ साफ लफ्जों में बता दिया, खास तौर से दोस्तों के बारे में बताया है कि आपके दोस्त दुश्मन के मुकाबिल ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। तो खास तौर पर अपने दोस्त से मुखातिब होते वक्त क्या करना है, ख्याल रखना है
कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राज फाज कर दे, हमारे राज क्या कर दे, लोगों को बता दे, हमारे राज फैला दे। तो इसी तरीके से यहाँ पर यह चैप्टर मुकम्मल होता है। अब आइए हम सवाल जवाब के ऊपर चलते हैं। सवाल जवाब यहाँ पर बहुत ही पेचीदगी के साथ हम बयान करेंगे, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से बयान करेंगे। कुछ अल्फाज के माना सेंटेंस के हिसाब से तब्दील हो जाया करते हैं, तो आप लोग कुछ गलत नहीं समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको सर सैयद अहमद खान के बारे में बता दिया कि सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए, एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए, यानी एक बहुत बड़े मुक़द्दस घर में पैदा हुए। उनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ और उनकी जो कब्र है, वहां जो दफन है, कहाँ है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। उन्होंने उनका जो उनको खिताब मिला था तो 1778 में मिला था, 1878 में उनका खिताब मिला था सर का। उनके बाद उन्होंने एक स्कूल खोला था जिसका नाम पहले क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उसके बाद फिर क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनको तब्दील कर दिया गया नाम को। आगे देखिए, सबसे पहला सवाल यहां पर आता है, सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहले सवाल है यहाँ पर, सर सैयद की पैदाइश कब हुए? तो यहाँ पर हमने बताया कि सर सैयद की पैदाइश 1817 में हुई। जितना सवाल आपसे किया जाए आपको जवाब उतना ही का देना है। दूसरा सवाल में पूछ रहा, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? जवाब में है, सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम था। आपने जो पहले बोर्ड पर जो लिखा हुआ था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके काम आएगा, उसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तीसरा सवाल में सर सैयद की वफात कब हुई? तो सर सैयद की वफात 1898 में हुए। चौथा सवाल है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? निसाब कहते हैं बुक को, यानी सर सैयद के कौन सी चैप्टर आप अपनी किताब में पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सर सैयद का मजमून जो है वो रिया है, जो हमारे निसाब में शामिल है। मजमून है ये वाला जो चैप्टर है रिया, ये एक मजमून है। हमने पहले ही बताया कि मजमून कहते हैं किसी भी टॉपिक पे बात करने को, यानी अगर हम किसी की भी बात के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे स्कूल के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हत्ता कि जो भी हम जिसके ऊपर भी किसी की भी रिलेटेड बात कर रहे हैं वो मजमून कहलाता है। यानी हमारा मजमून ये है, हमारा मौजू ये है, तो समझे, तो टॉपिक को ही मजमून कहा जाता है। आगे देखिए, नंबर 1 में 2 नंबर वाले सवाल में पूछ रहा, सर सैयद की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे। यानी कह रहा सर सैयद क्या थे, वो क्या किए। तो सबसे पहले तो आपको उनका नाम लिखना है, उनके बाद उनके घर का नाम लिखना है, उनके बाद उनको क्या करना है कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुए, ये सब आपको लिख देना है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 को दिल्ली में हुई। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था और उनकी वालिदा अजीजुन्निसा बेगम थी। अब यहां पर इतनी बातें हो गई, उसके बाद वहां पर आपको क्या कर देना है कि 1878 में उनको सर का खिताब मिला। उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जिसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। उनके बाद उनका नाम तब्दील कर दिया गया, उनके बाद क्या नाम पड़ गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वो भर कर आया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको कभी भी किताबी भाषा को याद नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज हमेशा इख्तियार करनी है। दूसरे सवाल में पूछ रहा है कि दरजैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए। जिन्स का माना कह रहा है मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर की बात कर रहा है और मुअन्नस की बात कर रहा है, यानी हमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है कि मुजक्कर यानी लड़का जो बात करता हो उसका पता चल जाए और जो लड़की बात करती है उसका पता चल जाए। तो सबसे पहला कह रहा मोती, किताब, वक्त, नाम, कलम, ये 5 अल्फाज दिए हुए हैं, मोती, किताब, वक्त, नाम, कलम। तो हमें क्या करना है कि इसको ऐसे इस्तेमाल करना है कि हमें ये पता चल जाए कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो मोती क्या होता है, चमकीला होता है या चमकीला होती है, तो यहां पर पता चला ये मुजक्कर है। तो कैसे बोलेंगे, मोती चमकीला होता है। दूसरे नंबर पे है किताब, मेरी किताब नहीं है या मेरा किताब नहीं है, मेरा नहीं होता, हमेशा क्या होता है, मेरी किताब नहीं है। यानी मोती जो पहला लफ्ज था वो मुजक्कर था और जो किताब है वो क्या है, मुअन्नस है, दूसरा लफ्ज। आगे कह रहा वक्त, तो नमाज का वक्त हो गया या हो गई, नमाज का वक्त हो गया या हो गई, तो नमाज का वक्त हो गया, ये क्या है, मुजक्कर है। आगे देखिए नाम, तुम्हारा नाम क्या है, ये तुम्हारा नाम क्या ही, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम क्या हुआ, मुजक्कर हुआ। आगे देखिए कलम, मेरा कलम नया है, नई नहीं है, मेरा कलम नई नहीं है, मेरा कलम नया है। तो आखिर में एक बात और बता दूं कि जिसके आखिर में बा और ता आता है, जिसके आखिर में बा और ता आता है वो ज्यादा क्या होता है, मुअन्नस होता है, वो ज्यादा क्या होता है, मुअन्नस होता है। जैसे रहमत, जैसे रहमत बरस रही है ना, बारिश हो रही है, तो अधिकतर जो जिसके आखिर में ता लगता हो वो क्या होता है कि
ज्यादातर मुअन्नस होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 3 में मजमून के बारे में 5 जुमले लिखे। इसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा, बल्कि यहां पर आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और यह बताना है कि यह मजमून कैसा है, यह मजमून क्या बताना चाहता है। तो आपको सिंपल तरीके से लिखना है कि यह मजमून हमें रियाकारी से बचने की क्या कह रहा है, तरजीह कर रहा है, यानी इससे बचने का तरीका बता रहा है। हमें यह बता रहा है कि हमारे दोस्त दुश्मन के मुकाबिल ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो हमारे सारे राज जानता है, वो हमसे बहुत ज्यादा क्लोज रहता है, वो हमसे हर तरीके की बात करता है। और अगर हम किसी अदरवाइज किसी भी शख्स से हम मुखातिब हम बात करें तो हमेशा हमें यह मुहतात रहना चाहिए कि सामने वाला बंदा रियाकार तो नहीं है। और जहां पर यह आपको अंदेशा हो कि फलाना बंदा धोखेबाज धोखा दे सकता है, तो वहां पर हमेशा आपको क्या करना चाहिए, एहतियात से काम लेना चाहिए। आगे देखिए 5 नंबर वाले सवाल में सिर्फ 2 सवाल है। पहला सवाल में पूछा था सर सैयद की अदबी खिदमात पर एक मजमून लिखे, यानी उन्होंने अदब की दुनिया में यानी उर्दू दुनिया में उन्होंने कितना खिदमत अंजाम दिया, उन्होंने क्या क्या काम करे। तो सबसे पहले तो क्या कर दे रहा है कि जदीद उर्दू नस्ल के फरोग में सर सैयद की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि जो उर्दू की दुनिया है इसमें सर सैयद अहमद खान का नाम मिटाया जा नहीं सकता, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने ही उर्दू को तजरीह दिया है, यानी लोगों को बताने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सर सैयद अहमद खान की। और सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो शायद हमारे पास उर्दू बहुत कम पहुंच पाता, उर्दू ना के बराबर होता। सर सैयद अहमद खान आए, उनके बाद उर्दू क्या हुआ, पूरी दुनिया में ज्यादा फैला। तो इनके बारे में आपको लिख देना है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है तो बहुत ज्यादा लंबा होगा। तो आप अपने मन से जो आपका दिमाग कहता है वो लिखिएगा, ये नहीं कि किताब में जो लिखा उसी को रट्टा मार के हम जाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ी गलती करेंगे आप। इसके बजाय क्या होगा कि आप इसको मुताला कीजिए, इसको पढ़िए, और जो जो अल्फाज आपको पसंद आते हैं, आपको हल्का लगता है, वो अल्फाज क्या करेंगे, आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। और आप अपने फेयर कॉपी हमेशा तैयार रखेंगे। आगे देखिए दूसरे नंबर सवाल में पूछ रहा है जेर निसाब मजमून रियाकारी का मरकजी ख्याल पेश कीजिए, यानी इससे आपको क्या सीख मिला, ये क्या कहना चाहता है। तो फिर वही बात दोहरा देना है कि सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए, 1817 में पैदा हुए, उनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ, 1898 में हुआ। उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उसके बाद उनका नाम को तब्दील कर दिया गया। उसके बाद फिर इसके बारे में लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल होता है तो कम से कम 1 पेज लिखना होगा आपको 5 नंबर का, तब हक अदा होगा। उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर चैप्टर आपको समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मुझे चैप्टर समझ में आ रहा है। और अगर भी अदरवाइज कोई परेशानी होती है, कोई सबक नहीं समझ में आ रहा है या कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का जवाब 100% दूंगा। अगर किसी उज़्र की वजह से नहीं दे सका तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि तमाम वजूहात को हटाकर मैं पहले आपके वजूहात को मद्देनजर रखूं और उसका जवाब दूं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। फिर आखिर में एक दरखास्त करता हूं कि अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप जो हैं इस फैमिली का हिस्सा बने, ताकि क्या हो कि आप बोर्ड एग्जाम जब देने जाएं तो लोग आपसे पूछे, बल्कि आप किसी से पूछने के मुहताज न रह जाएं। तो मैंने जो यहां पर बता दिया था कि पिछली बार वो यह मिटा दिया हूं, मैंने लिखा हुआ था कि आप लोगों को कुछ तोहफा है आप लोगों के लिए। तो इसी यहां पर यह बताना है कि आप कैसे ला सकते हैं अच्छा नंबर। तो यहां पर 2 ट्रिक है, आपको क्या करना है, 2 ट्रिक है, उसको आजमाना है और ये 100% काम करेगा। सबसे पहला देखिए, आप क्या करें कि सबसे पहले अपनी तहरीर को सुधारें, यानी आप अपनी राइटिंग को सुधारें। आपकी राइटिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी राइटिंग जितनी अच्छी होगी, आपका नंबर उतना ही बढ़कर आएगा। याद रखें, आपकी राइटिंग जितनी अच्छी होगी, आपका नंबर उतना ही बढ़कर आएगा। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा है आप क्या करें, अपने सोचने की समझने की सलाहियत को, कैपेसिटी को बढ़ाइए। जब आप सोचने समझने की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आप बहुत ही आसानी से, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपको लिखकर ही आना है, आप लिख ही लीजिएगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज कमजोर हुआ आपका, तो समझिए किसी काम का नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपको बहुत अच्छा सोचने की सलाहियत है लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं है, तहरीर नहीं अच्छी है, लिखने नहीं आ रहा है, तो फिर क्या कीजिएगा, वो सोचना बेकार है। और अगर आप सोचने से कासिर हैं, है ना, लेकिन सोच नहीं पाते, लेकिन लिखने बहुत अच्छा आता है, आपको बहुत अच्छी तहरीर है,
तो भी नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपकी तहरीर ही अच्छी नहीं है। आपको सोचने समझने की सलाहियत है लेकिन तहरीर नहीं है, और तहरीर है तो सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। तो इन दोनों को क्या करना, मजबूत करना है, स्ट्रांग करना है। जब ये हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो कोई माई का लाल भी हमारा नंबर रोक नहीं सकता। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।